آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ سنبھل جامع مسجد کے قریب واقع کنویں کے معاملے میں سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ، مقامی بلدیہ کی نوٹس پر عمل آوری پر لگائی روک۔ حیدرآباد میں فیوچر سٹی کو دی جائے گی ترقی، ریونت ریڈی کا CII کے اجلاس سے خطاب۔ سمیت غذا کے واقعات پر چیف منسٹر عہدیداروں پر برہم، سیکریٹریٹ میں طلب کردہ اجلاس میں ضروری ہدایات۔ ریاست کے چھوٹے اور خانگی دواخانوں میں آروگیہ شری خدمات بند، زیر التوا بلز ادا کرنے کا مطالبہ۔ ہریش راؤ کو عدالت سے ملی راحت، آئندہ احکامات تک گرفتاری پر لگی روک۔ کل سے اسکولی طلباء کو سنکرانتی کی تعطیلات، کالجز بھی رہیں گے بند۔ اور تلنگانہ میں موسم شدید سرد، عادل آباد میں اقل ترین درجہ حرارت 8.2 ڈگری درج۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے اب تک 7 افراد کے ہلاک ہونے اور تقریباً $55 ارب کے نقصان کا اندیشہ لگایا گیا ہے۔ جنگلات میں لگی آگ سے درندہ صفت اداکار جیمس ووڈ کا گھر بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ جیمس ووڈ نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان سب کو مار ڈالو۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی اس آگ نے جیمس ووڈ کا عالی شان اور انتہائی مہنگا محل نما گھر جلا کر خاکستر کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جیمس ووڈ کو صارفین کی جانب سے کوئی ہمدردی نہیں ملی۔ متعدد صارفین نے جیمس کو وہ وقت یاد دلایا جب وہ اسرائیل کی غزہ میں کی جانے والی نسل کشی کی حمایت کر رہا تھا اور خوشیاں منا رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے آج اتر پردیش حکومت کو نوٹس جاری کر کے سنبھل مسجد کے ارد گرد کنویں کے استعمال سے متعلق مقامی بلدیہ کی طرف سے جاری عوامی نوٹس پر عمل درآمد نہ کرنے اور 2 ہفتوں میں صورتحال کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار کی بنچ نے سنبھل شاہی جامع مسجد کمیٹی کی درخواست پر یہ حکم جاری کیا۔ بنچ نے سنبھل میونسپلٹی کے حکام سے کہا کہ وہ پوسٹرز کے ذریعے جاری کردہ عوامی نوٹس کو نافذ نہ کریں، جس میں شاہی جامع مسجد کے ارد گرد کے کنویں کو ہندوؤں کے ذریعے عبادت اور غسل کے لیے دستیاب عشری ہر بہر مندر قرار دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خواتین سے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں آنے والے پنچایتی اور شہری بلدیاتی انتخابات میں تبدیلی کے اہم کارندوں کے طور پر ابھریں۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ آج سے ہی پنچایت اور بلدیات انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ضلع کٹھوعہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ دہلی میں 70 رکنی اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے آج گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ دہلی کی موجودہ اسمبلی کی مدت 23 فروری کو ختم ہو رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے حکم پر دہلی کے چیف سیکریٹری کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن میں قومی راجدھانی علاقہ دہلی کے تمام اسمبلی حلقوں کو عوام کی نمائندگی ایکٹ کے تحت نئے اراکین کے انتخاب کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر کے حکم سے دہلی اسمبلی کے انتخابی پروگرام کے سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ مدھیہ پردیش میں ایک عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا۔ IT حکام نے BJP کے سابق MLA کے گھر کی تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران اس کے گھر میں 3 مگرمچھ پائے گئے۔ حکام کی جانب سے دی گئی تفصیلات کے مطابق BJP کے سابق MLA ہرونش سنگھ راٹھوڑ پر ٹیکس چوری کا الزام ہے، جس کے نتیجے میں IT حکام نے اس کے گھر پر چھاپا مارا۔ اس وقت راٹھوڑ کے گھر کے تالاب میں 3 مگرمچھ نظر آئے۔ فوری طور پر محکمہ جنگلات کے عہدیداران کو اطلاع دی گئی۔ اس دوران راٹھوڑ کے ساتھ سابق کونسلر راجیش کیشروانی کے گھروں کی بھی تلاشی لی گئی۔ حکام نے پایا کہ راٹھوڑ 155 کروڑ روپے کی ٹیکس چوری میں ملوث تھا۔ پنجاب کے جالندھر میں فلور کے قریب جمعہ کی صبح شدید کوہر کی وجہ سے 2 بسیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس میں اتر پردیش ٹرانسپورٹ کی بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پنجاب پولیس کے روڈ سیفٹی ونگ جالندھر کی جانب سے ASI جسوندر سنگھ موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ جب اتر پردیش ٹرانسپورٹ کی بس جالندھر لدھیانہ ہائی وے پر
फल्लोर कब्जे में अंबेडकर चौक के करीब फ्लाईओवर पर पहुंची तो शदीद कोहर के बाद पीछे से आने वाली एक खानगी कंपनी की बस ने इसे टक्कर दे दी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के नेशनल काउंसिल के इजलास में हैदराबाद में शिरकत करते हुए हैदराबाद और तेलंगाना में मुस्तकबिल में तरक्याती प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसीली तौर पर तस्करा किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि हैदराबाद में फ्यूचर सिटी को तरक्की दी जाए। फ्यूचर सिटी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सियोल और दुबई से मसाबकत करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। तेलंगाना की आवाम ने यहाँ के लिए जो ख्वाब देखा था, तेलंगाना अब उभर रहा है। हम एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जो सर्विस सेक्टर से मरबूत होगा। फ्यूचर सिटी को आलूदगी से पाक और नेट शहर बनाना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कबायली ग्रुप्स और कबायली तंजीमों के अवामी नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। कबायली तंजीमों के नुमाइंदों और अवामी नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया कि वो कबायलियों की तालीम और रोजगार और माशी मौके पैदा करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर से कबायलियों ने ख्वाहिश की कि आदिवासी इलाकों में सड़क, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, पीने के पानी की फराहमी के इक़दाम किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी और अकामती स्कूल्स में गुज़िश्ता चंद दिनों से पेश आ रहे समेत ग़िज़ा के वाक़यात पर शदीद बरहमी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने आज सेक्रेटेरिएट में कलेक्टर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। यह इजलास तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने समेत ग़िज़ा के वाक़यात पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों हुकूमत ने तलबा के डाइट और कॉस्मेटिक के चार्जेस में इजाफा किया, लेकिन स्कूल्स में तलबा को सरबराह की जाने वाली ग़िज़ा से बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, जिससे हुकूमत की नेक नामी मुतासिर हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुरुकुल स्कूल्स में ज़िला कलेक्टर्स के दौरा न करने की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तेलंगाना के छोटे खानगी दवाखानों में जुमा से आरोग्यश्री खिदमात, एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम और जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम के तहत इलाज रोक दिया गया। तेलंगाना आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने बताया कि हुकूमत इन दवाखानों को तकरीबन 1200 करोड़ रुपए अदा शुदनी है। 400 बिस्तरों वाले इन दवाखानों में मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत इलाज की मुफ्त सहूलतें फराहम की जा रही थी, जो जुमा से रोक दी गई। एसोसिएशन के अरकान ने वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा से अपील की कि वो मुदाखलत करते हुए ज़ेरे इल्तिवा मेडिकल बिल्स की इजराई को यकीनी बनाएं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने साबिक वजीर और BRS लीडर हरीश राव को आइंदा अहकामात तक गिरफ्तार न करने की पुलिस को हिदायत देते हुए इस केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडर चक्रधर गौड़ ने चंद दिन कबल हरीश राव के खिलाफ पंजगुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि BRS दौर में हरीश राव ने इनके फ़ोन को टैप करवाया था और उन्हें फौजदारी मुकदमात में फंसाया गया था। इस शिकायत पर पंजगुट्टा पुलिस ने हरीश राव के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसके खिलाफ हरीश राव हाई कोर्ट से रुजू हुए और इस केस को खारिज करने की अदालत से दरख्वास्त की थी। तेलंगाना हाई कोर्ट में फिल्म गेम चेंजर के टिकटों की शरह में इजाफा और खुसूसी शो की इजाज़त देने के खिलाफ दायर एक दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस मौके पर अदालत ने हालिया दिनों शहर के सिंधिया थिएटर में पेश आए भगदड़ वाक़े के पेश नज़र इस फिल्म के खुसूसी शो की इजाज़त देने पर नाराज़गी जाहिर की। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि बेनिफिट शो को मनसूख कर देने का ऐलान करते हुए बिलवास्ता तौर पर खुसूसी शो के नाम पर इजाज़त किस तरह मुनासिब है। आधी रात को 1 बजे शब के बाद से सुबह के अवलिन सातों तक खुसूसी शो की इजाज़त देने के फैसले पर नज़रसानी का मशवरा दिया गया। अदालत ने इस खुसूस में महकमे दाखिला के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी को हिदायत जारी की। सदर BRS और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से उनके फर्जंद और साबिक वजीर तारक रामाराव ने मुलाकात की। मेदक जिले के एरावेली में वाक़ चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस में ये मुलाकात हुई। इस मौके पर BRS के रुकने असम्बली कौशिक रेड्डी, साबिक रुकने असम्बली बालका सुमन और BRS लीडर P कार्तिक रेड्डी भी मौजूद थे।
फार्मूला ई कार रेसिंग केस में एसीबी के अहदेदारों की जानिब से जुमेरात के रोज 6 घंटे की पूछताछ के बाद आज दूसरे दिन तारक रामाराव अपने वालिद और पार्टी सदर से मुलाकात को सियासी हलकों में काफी अहमियत दी जा रही है। तेलंगाना बीजेपी ने रियासत में खाली होने वाले कानून साज काउंसिल की 3 नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 2 टीचर जुमरे के और एक ग्रेजुएट जुमरे के काउंसिल के उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज पार्टी के दफ्तर में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिनमें नलगोंडा, वरंगल, खम्मम हलके टीचर के उम्मीदवार के तौर पर पी सर्वोत्तम रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक हलका टीचर के उम्मीदवार के तौर पर एम कुमरैया को उम्मीदवार बनाया गया। इसी तरह ग्रेजुएट हलके करीमनगर, निजाम आबाद, आदिलाबाद, मेदक से CNG रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। संक्रांति करीब आने के साथ ही तमाम तालीमी इदारों के तुलबा और असातिज़ा मुख्तसर मुद्दत की तातीलात के तैयार हो गए हैं। 11 जनवरी से तमाम तालीमी इदारे संक्रांति त्यौहार के लिए बंद रहेंगे। स्कूल्स के तुलबा 11 से 17 जनवरी तक 7 रोज़ा त्यौहार की तातीलात से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जहां तक जूनियर कॉलेजेस का ताल्लुक है, तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने संक्रांति की तातीलात का ऐलान 11 से 16 जनवरी तक किया है। जूनियर कॉलेजेस 17 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। महकमे अक़लियती बहबूद तेलंगाना के तहत काम करने वाले तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्किल हैदराबाद ने अहल अक़लियती उम्मीदवारों को मुख्तलिफ शोबों में रियासती और मरकजी सतह के तक़र्रुरात बशमूल ग्रुप 1, 2, 3, 4, RRB, SSC और बैंकिंग वगैरह में 4 माह की बेसिक फाउंडेशन कोर्स की मुफ्त तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। डायरेक्टर सर्किल टी प्रवीण कुमार रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना के तमाम अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अहल मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 5 फरवरी 2024 तक तौसीह की गई है। रियासत तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में खम्मम कौमी शाहरा पर एक कानगी ट्रैवल्स की बस ठहरी हुई लारी से टकरा गई। इस हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। इस हादसे में दूसरे कई अफराद जख्मी बताए गए, जिनमें से चंद शदीद जख्मी हैं। यह हादसा आइलापुरम के पास पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये बस उड़ीसा से हैदराबाद जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। महलूकीन में मजदूर शामिल हैं जो उड़ीसा से ताल्लुक़ रखते हैं। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया गया है। 18 మందికి ఇంజూర్డ్ పర్సన్స్ ఏరియా హాస్పిటల్ సూర్యాపేటకు, 4 చనిపోయారు. అది వాస్తవంగా అది ఇసుక లారీ, ఇది కొవ్వూరు నుంచి కోహిర్కి వెళ్తున్నది. అది టైర్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం వల్ల ఆగిపోయినది. ఆగిపోయిన 10 నిమిషాలకే వెనక నుంచి వచ్చి డాష్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది। हैदराबाद के गोशा महल में चाकनावाड़ी का नाला फिर एक मरतबा मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में क्रेशर लारी इसमें उलट गई। लारी का ड्राइवर इस हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज रह गया। बताया गया है कि मुनहदिम शुदा नाले का काम जारी था। इस दौरान यह हादसा पेश आया। इस हादसे से मुकामी अफराद को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ఈ నాలా అనేది గత కొద్ది రోజుల నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ చేయబడుతుంది। ఈ నాలా ఇరిగిపోయినప్పుడే మేము స్థానికంగా ఉన్న ఈ మహేందర్ గారికి, ఈ గారికి, అలాగే డిప్యూటీ కమిషనర్ గారికి మేము విజ్ఞప్తి చేసినాం। సార్, ఈ నాలా పరిస్థితి బాగలేదు, ఈ నాలాని త్వరగా మీరు పూర్తి చేయాలి అని చెప్పినాము। అయితే వాళ్ళు ఈ నాలా మటుకు మొత్తం ఒక 800 to 900 మీటర్స్ దూరం ఉంది ఇది, కానీ గవర్నమెంట్ మటుకు ఒక 50% కన్స్ట్రక్షన్ కి పర్మిషన్ ఇచ్చింది, ఆర్డర్ ఇచ్చింది, ఇంకా 50% ఇవ్వలేదు। అంతలోపే ఇవాళ చూడండి ఒక హెవీ బండి కుంగిపోయి ఇలా పడిపోయింది। ఇట్లాంటి పరిస్థితి రేపు రాబోయే కాలంలో ముందున్న రోడ్డు కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఉంది। వీళ్ళు అర్థం చేసుకుంటలేరు। మీరు సగం పనులు చేసి ఓన్ పానాలు తీస్తారు। ప్రజలు నడిచే రోడ్డు ఇది। రేపు పొద్దున ఇదే స్కూల్ బస్సో లేకపోతే ఆటోనో లేక కారో ఎవరో చనిపోతే స్పందిస్తారా అని నేను ఈ గాని అలాగే డిప్యూటీ కమిషనర్ గారిని అడుగుతున్నా। మీరు ఎందుకు మొత్తం ఆర్డర్ ఇవ్వలే? సగం వర్కే మీరు ఎందుకు ఇచ్చారు? ఇంకా సగం అట్లనే పెండింగ్ ఉంది। ఎన్నో రోజుల నుంచి స్థానిక ప్రజలకు ఇబ్బంది జరుగుతుంది, అయినా మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటలేరు। మేము ఈ గాని అలాగే డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు ఇప్పుడే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। సార్, మీరు ఇచ్చిన పర్మిషన్ సగం మట్టుకే ఉంది, ఇట్లా కుదరదు। మీరు మొత్తం నాలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి। మీకు ఎందుకు కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేకపోతున్నారు? అధికారులు దీని మీద స్పందించాలి। మీరు సగం పర్మిషన్ ఇచ్చి పనులు చేస్తే ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతాయి। దీని కాకుండా మీరు మొత్తం ఫుల్ ఫ్లెజ్ గా నాలాని కంప్లీట్ చేయండి।
లేకుంటే రాబోయే కాలంలో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందికి పడతారు. ఎవరైనా పడి చనిపోయిన విధంగా స్పందిస్తారా అని నేను ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నాను సార్. ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం. దీన్ని మీరు చాలా లైట్ గా తీసుకొని ఒక 25%, 35% కడతాము, తర్వాత నాలో ఉంది కదా మంచిగానే ఉందంటే మీరు మంచిగా ఉందని ఎట్లా చెప్తారు? రేపు ఇప్పుడు ఇలా చూసిరు కదా, ఇట్లనే అది పడిపోతే ఎవరు జిమ్మేదారి? ప్రజల ప్రాణాలు పోతే ఎవరు జిమ్మేదారి? నేను ఎమ్మెల్యే గారిని, కార్పొరేటర్ గారిని మళ్ళీసారి విజ్ఞప్తున్నా సార్, ఈ నాలకు సంబంధించిన మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు చూడండి. గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఓన్లీ 25-30% వరకే మనకు పర్మిషన్ ఇచ్చిరు, అది కుదరదు. ఈ నాలా కడితే हैदराबाद रीजन में कई महकमे पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को तरक्की दी गई है। 1989 और 1990 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले 187 कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के तौर पर तरक्की दी गई है। मल्टी जोन 2 के आईजी सत्यनारायण ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट ने इन 23 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की जो 5.29 करोड़ रुपए के साइबर धोखाधड़ी के वाक़े में मुलविस थे। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जराइम मुलाजिमतों की फराहमी के नाम पर धोखा, डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग के नाम पर धोखों से मुताल्लिक़ है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 40,000 रुपए नगद रकम, 25 मोबाइल फ़ोन्स, 45 सिम कार्ड्स, 28 पासबुक्स, 23 डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, 1 लैपटॉप, 3 QR कोड्स जब्त किए हैं। मखसूस इत्तला की रोशनी में हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट्स ने इन रियासतों की पुलिस टीमों के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ये ऑपरेशन अंजाम दिया। हैड्रा के अमले ने जुमा को जिले रंगारेड्डी के मनीकोंडा इलाके के नेकनामपुर में कई गैर कानूनी इमारतों को मुनहदिम कर दिया। ज़राया ने बताया कि हैड्रा को नेकनामपुर झील पर कब्जा करते हुए गैर कानूनी ढांचों की तामीर की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद कमिश्नर हैड्रा AV रंगनाथ ने इन गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के अहकाम जारी किए थे। पुलिस की सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है। इस दौरान आदिलाबाद में जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब अकल तरीन दर्ज हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने जुमे को जारी करदा यौमिया रिपोर्ट में बताया कि आइंदा 7 दिन के दौरान इम्कान है कि रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। आइंदा 3 दिनों के दौरान अकल तरीन दर्ज हरारत तवक्को है कि मामूल के मुताबिक रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा। संभल जामे मस्जिद के करीब वाक़े कुएं के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मुकामी बल्दिया की नोटिस पर अमलावरी पर लगाई रोक। हैदराबाद में फ्यूचर सिटी को दी जाएगी तरक्की, रेवंत रेड्डी का CII के इजलास से खिताब। समेत ग़िज़ा के वाक़यात पर चीफ मिनिस्टर ओहदेदारों पर बरहम, सेक्रेटेरिएट में तलब करदा इजलास में ज़रूरी हिदायत। रियासत के छोटे और खानगी दवाखानों में आरोग्यश्री खिदमत बंद, ज़ेर इल्तिवा बिल्स अदा करने का मुतालबा। हरीश राव को अदालत से मिली राहत, आइंदा अहकामात तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। कल से स्कूली तुलबा को संक्रांति की तातीलात, कॉलेजेस भी रहेंगे बंद। और तेलंगाना में मौसम शदीद सर्द, आदिलाबाद में अकल तरीन दर्ज हरारत 8.2 डिग्री दर्ज। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।